लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन सामीन, इस वक्त मैं तुर्कागोड़ा गांव एक विलेज है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि अतराफ़ अकनाफ देहात है, गांव है, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। और एक आशुखाने शहज़ाद क़ासिम अलैहिस्सलाम है यहाँ पे। शहर से ये 35 से 40 किलोमीटर दूर है। और इसको मुलाहिज़ा फरमाएँ कि आशुखाने के तहत एक क़ब्रिस्तान है, जो क़ब्र वगैरह है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ के जो खिदमत गुज़ार है, गौरी शाह साहब मज़ार है। इनका नाम, ये जो मज़ार में जो मदफून है, उनका नाम है गौरी शाह साहब। ये साहब हैं। और अतराफ़ जो यहाँ के खिदमत गुज़ार है वो दफन है यहाँ पर। ये पूरा क़ब्रिस्तान है। इसके आगे आप देखें कि अज़ाख़ाना नज़र आ रहा है। ये अज़ाख़ाने की तफ़सीलात मैं आगे पेश करूँगा आपको। गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। फूलों की तरह दश्त बला में बिखर गए, गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। फरवा के लाल इब्न हसन जान शाहिदी, तेरा बरस के सीन में बड़ा काम कर गए। पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। रोकर सकीना कहती है हमसे ये बार बार, कुबरा बताइए मेरे भैया किधर गए। पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। क्या हम पे देखो आज क़यामत गुज़र गई, दुल्हा से पहले हम ही भला क्यों न मर गए। पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। कुबरा कथा बयान लिया साथ हमको भी, दुल्हन को छोड़ कर मेरे दुल्हा किधर गए। पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। ता ज़िंदगी न चैन मिलेगा हमें कभी, पामाल आरज़ू को मेरी आज कर गए। पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए, पामाल हो के हज़रत क़ासिम गुज़र गए। ता ज़िंदगी न चैन मिलेगा हमें कभी, पामाल आरज़ू को मेरी आज कर गए।
پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے وہ کون سا ستم ہے جو ہم پر ہوا نہیں ہم جی تمہارے بنا آج مر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے قاسم تمہارے بعد بلا کے ستم ہوئے دربار میں یزید کے ہم ننگ سر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین السلام علیکم ناظرین میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں ناظرین ہمارا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل آپ تمام کی خدمت میں جب کبھی حاضر ہوتا ہے تو ایک خاص وجہ اور خاص عنوان اور خاص تبرک عاشق خانے کی تفصیلات سے الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے محمد وآل محمد کا صدقہ ہے اور بالخصوص غم حسین کے سلسلے میں اس کے تصدق سے ہم تمام شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں کی تفصیلات سال گزشتہ بھی پیش کی عزا خانہ عاشق خانوں کی تبرکات کی اس سال بھی اسی خدمت میں ہم مصروف ہیں تو اس سلسلے میں اس وقت میں شہر سے دور کم سے کم 35 سے 40 کلومیٹر دور جس گاؤں ہے اس کا نام ترکا گڑا ہے اس عزا خانے میں موجود ہوں یہاں بھی کم سے کم جیسے میں نے تفصیل معلوم کی تو 400 برس قدیم یہ عزا خانہ عاشق خانہ ہے تو یہاں کے تفصیلات میں یہاں کے خادم یہاں کے متولی مرزا ہمایون علی بیگ صاحب سے دریافت کر کے آپ کے روبرو پیش کروں گا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یہ ہمارا جو گاؤں ہے تقریباً 400 سالہ قدیم ہے اس کے تحت قبرستان ہے اور یہ قدیم ہے ہمارے دادا پردادا جو بھی تھے وہ ان بٹھاتے ہوئے ہے اب سلسلہ جو ہے میرے تک آیا ہوا ہے میں اس عاشق خانے کا متولی ہوں اور میرے بھائیاں برادر بھی ہے اور 5 بہناں 4 بھائیاں بھی ہے اس کے وارث ہیں اور یہ لوگ کرتے رہیں گے ہماری پوری فیملی ہم رہنے کے بعد یا نہ رہیں تو ہماری فیملی جو ہے اس کا عاشق خانے کا جو ہے برابر کریں گے اور یہ عاشق خانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عاشق خانہ کچھ سال پہلے گیت چکا تھا ایک 10-15 سال پہلے منہدم ہو گیا تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کا عاشق خانے کو یہاں ایک قدیم املی کا جھاڑ ہے وہاں پر جو ہے اس کو پیٹھی میں بند کر دیتے تھے اور کوئی گاؤں والے جا کے اگر وہاں ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر سانپ جو ہے اس کو نگرانی کرتا تھا اور وہاں سے اس کے بعد جب محرم آتا تھا ہمارا یہاں پر ایک قدیم متولی جو غلام علی ہے نگران کار وہ نگران کار یہاں پر رہتا تھا اب اس کے بچے وغیرہ بھی یہاں پر رہتے ہیں نگرانی وغیرہ کرتے ہیں اور خصوصیت یہ ہے کہ حیدرآباد کا جو ہمارا جو عاشق خانہ ہے تقریباً جو ہے اس زمانے میں آمد رفت کی جو ہے سہولت نہیں تھی بنڈیوں سے آتے تھے پیدل آتے تھے بہت تکلیف ہوتی تھی اس پیریڈ میں بھی ہم لوگ جو ہے عاشق خانہ برابر بٹھاتے تھے برابر اٹھاتے تھے اب مولا کا کرم یہ ہے کہ بساں ہیں اس سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں سائیکل موٹراں ہیں بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں عاشق خانے ہیں اور جمعرات کو جمعرات بچے آتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں ہر مومن بھی کوئی آنا چاہ رہا عاشق خانے میں زیارت کرنا چاہ رہا ہے تو زیارت وغیرہ بھی کر سکتا ہے اب ہمارا ایک بھائی کے بچے میں اب 2 بھائیاں تو گزر گئے 2 بھائیاں ہیں میں ہمارا بھائی وہ لوگ نگرانی کریں گے اس کے بعد ہمارے ان کی اولاد جو ہے سال بھر سال کو سال ایک جنے جو ہے یہ عاشق خانہ اشاعت کرتے ہوئے آئیں گے جب تک یہ عاشق خانہ رہیں گا ہم لوگ رہیں گے خدمت برابر کرتے رہیں گے آپ یہ بتائیے کہ یہاں کے جو عاشق خانہ ہے تو یہ آپ کے پاس کیسے آیا کتنے نسل ہو گئے آپ تمام آپ کے جو دادا پردادا سے کیسا آیا اور ان کے نام بتائیے ہمارے مردان علی بیگ یہ جو مقطع ہے ہمارا 380 ایکڑ کا ہے جس میں ہمارے دادا جو ہے خریدے تھے یہ زرخرید پراپرٹی ہے اس زمانے سے جو ہے دادا پردادا من اللہ بیگ
मर्दान अली बेग, इमाम अली बेग, इन तमाम की विरसा से होते हुए हमारे तक आया। मेरा को जब से होश आया मैं वालिद साहब के पास रहता था, गांव में आता जाता रहता था, आशिकाना इस्ताद करता था। वालदा थे, हम लोग थे, जब से निगरानी करते थे। उस ज़माने में इतने पोतरा पोतरी नहीं थे, चंद लोग थे, गांव के लोग थे, वो लोग उठाते थे, हम लोग उठाते थे। हमारा निगरानकार गुलाम अली बड़ा मर गया, उन्हें उसके बच्चे हैं, वो लोग करते हुए आ रहे हैं। आपके तमाम पूरे भाई और बहनों के नाम बताइए। मिर्ज़ा हसन अली बेग बड़े भाई हैं, और मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग मनले भाई हैं, मिर्ज़ा मिनुल्ला बेग सनले भाई हैं। सब में छोटा मिर्ज़ा हुमायूं अली बेग, मैं मुतवली हूँ, मैं इस आशिकाने का निगरानकार मुतवली खिदमत गुजार जो भी हूँ मैं हूँ यहाँ पर। अब मेरे अंडर में ये है। अब आइंदा साल बड़े भाई के बहनें कितने हैं आपको? बहनें 5 बहनें हैं, 5 बहनों के बच्चे भी हैं, वो लोग भी आते जाते रहते हैं, मजलिस वगैरह जुमेरात को जुमेरात करते हैं। और जो भी बच्चे आना चाहते हैं आते हैं, बाहर के मोमिनीन भी आते हैं, जुमेरात को जुमेरात, जुम्मे को जुम्मा, जब भी चाहे कर सकते हैं। यहाँ की जैसे इल्म मुबारक की इस्तादगी कब अमल में आती है और इल्म मुबारक यहाँ उठते कब है? ये है बार 1 तारीख को 29 तारीख को आशिकाना इस्ताद कर देते हैं, और 7 मुहर्रम को सुबह फजर के दिन ये शहज़ादे क़ासिम का कलम है, जो ख़ास खुसूसन मजलिस सालाना होती है। बच्चे हमारे हैदराबाद से आते हैं, कारों में, गाड़ियों में आके 5 बजे रात से अलम वगैरह उठाते हैं, तबरुक वगैरह की जो तकसीम करते हैं, गाँव वाले भी खाते हैं, हमारे खिलाते हैं, मजलिस मोमिनीन करते हैं। यहाँ पर मजलिस वगैरह होती है, ज़ियारत जो है 12 को होती है, उसके बाद आशिकाना बंद कर देते हैं, फिर साल को साल आशिकाना खुलता है। अगर कोई यहाँ आकर मजलिस और नज़र करना चाह रहा है तो ये किससे रब्त पैदा करें? यहाँ पर मेरे से करें, यहाँ पर निगरानकार है जाफ़र बोल के है, उसको भी, उससे भी कर सकते हैं। आपका नंबर या आपके बच्चे का किसी का नंबर बोलिए। जाफ़र का नंबर है, मेरा नंबर है 9866403599, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैं मुतवल्ली के बच्चे को निगरानकार को मैं बोल देता हूँ, आप लोग आ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। मुझे ज़िक्र आलम है कि हैदराबाद नहीं ले जा सकते, क्योंकि हैदराबाद लेके तो हमारे बड़े भाई जो मिर्ज़ा चिराग अली बेग थे उनका भी इंतकाल हो गया, ताया भी लेके गए, दादा भी लेके गए, मगर वो लोग नहीं लाने लगे। उसके बाद यहाँ वालिद साहब के ज़माने से वो लोग पाबंद कर दिए कि ये आशिकाना यहीं पर बिठाना, हैदराबाद नहीं ले आना, क्योंकि उस ज़माने में सहूलत नहीं थी, इसलिए लेके जाने की सोचे थे। अब नहीं ले जा रहे हैं, यहीं बिठा रहे हैं। हाँ, मेरे वालिद साहब मिर्ज़ा अब्बास अली बेग जी। तो ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था। बारहा मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करता हूँ कि नाज़रीन और सामाइन कि आप गौर फरमाएँ कि ज़िक्र हुसैन किसी इलाके तक महदूद नहीं है, तमाम कहीं कौम हो, कस्बा हो, किसी भी मज़हब व मिल्लत का शख्स हो और किसी मसलक से वाबस्ता हो, मगर वो दर हुसैन इब्न अली पे ज़रूर आता है, वो ज़रूर हाज़िरी देता है और अपनी दिली मुरादें पाता है। इसे मैं बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। सिर्फ हम हर अज़ाख़ाने की यही तफसीलात दरियाफ़्त करते हैं कि कब से है और कैसे यहाँ के एहतमाम हो रहे हैं, कैसा इंतज़ाम हो रहा है, कितना भी ज़माना पुराशोभ हो। कोशिश ये होती है कि खिदमत किसी तरह खिदमत हो जाए। हुसैन इब्न अली के दर पर हम सजदरेज़ हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए हम आशिक़ानों की तफसीलात बताते हैं, और बताने का मकसद ही यही है कि कहीं पर वसाइल न होने के बावजूद भी ज़िक्र हुसैन वहाँ पर बराबर जारी व सारी है, क्योंकि परवरदिगार का वादा है, ये ज़रूर होगा। और हम शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का, क्योंकि उसने हमें ये मोहलत दी और ये मौका दिया और इस मसलक में हमें पैदा किया, इसके हम शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ हम आप तमाम नाज़रीन सामईन से बिलख़ुसूस मैं मारूज़ा यही करता हूँ कि मैं किसी भी प्रोग्राम में अगर कुछ मेरी जानिब से कुछ कमी पेशी या कोताही हो गई हो तो मुझे दरगुज़र फरमाइए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से अगर किसी अज़ाख़ाने आशिक़ाने की तबर्रुक की तफसीलात अगर आप हमारे ज़रिए से अगर हमें इज़्ज़त बख्शना चाहते हैं, हमारे हिस्से में सवाब आप दर्ज करवाना चाहते हैं, तो हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा से रब्त पैदा करें। रब्त पैदा करके आप बताएं कि कौन से दिन कौन सी तारीख़ को आपके पास तबर्रुक है या आना है, हम आकर ये तमाम तफसीलात लेकर ये हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप दुआ में याद रखें। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि लोकेशन का भी आप ध्यान रखें कि हम डिस्क्रिप्शन में ये लोग से रब्त पैदा करने के लिए कांटेक्ट के लिए फ़ोन नंबर्स रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में यहाँ का मैप रहेगा, फुल मैप, वो तमाम आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन ज़िंदा है, शहीद